अभी हम लोग क्या करेंगे? Again, we will continue this topic of free body diagram, and today we will discuss another example or the variant of free body diagram. So the topic that we are going to study today is called as a pulley system. Pulley system. System. तो pulley system में क्या होता है? See, listen. Now I hope everybody know hears about what is a pulley. इनको नहीं पता है, ठीक है, बता देता हूँ कि in the village area, the remote areas, ठीक है, whenever the water is to be drawn from a well, okay, we use this machine called as pulley. Yes, it can be termed as a machine. Okay, it looks like a wheel. It looks like a wheel. Okay, and we put rope on that particular wheel. So pulley system looks somewhat like this. Suppose this is a stand and here is a pulley. Okay, and we pass rope or string over a pulley. We pass our rope or string over the pulley. ऐसे कुछ. And then there is a bucket here. Okay, and then there is a bucket here. ऐसा कुछ है, ठीक है. And then we draw water from the well with the help of this pulley. So this pulley moves and we can easily pull the water out from the well. This is what a pulley system looks like. Okay, a simple wheel. एक wheel रहता है, wheel के ऊपर ऐसा you can put a rope और वो wheel घूमता है. Okay, generally you can see it in the those buildings अभी भी जहाँ पे पुराने टाइम का लिफ्ट रहता है. सिर्फ पुराने टाइम में एक लिफ्ट होती थी बहुत छोटी सी. ओके, अभी तो मैकेनाइज्ड हो गई है, एवरीथिंग इज देयर. बट पहले टाइम में ऐसे लिफ्ट होती थी जिसमें पुली सिस्टम यूज होता था. जब लिफ्ट ऐसा ऊपर जाता था, वी कैन सी समथिंग इज कमिंग डाउन ऐसे करके. फिर जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो समथिंग ऐसा मूविंग इज अप. वो पुली सिस्टम पे वर्क करता था बेसिकली. ओके, तो पुली बेसिकली क्या काम करता है? पुली का काम होता है, इट रिड्यूसेस द एफर्ट. whenever we are moving an object, pulling an object, it reduces our effort. अपने एफर्ट को वो कम करता है, वो अपने एफर्ट को मिनिमल करता है. That is the work of a pulley. And today we shall be discussing related to pulley only. Now, before we study with the main concept of the pulley, okay, we have to lay down certain assumptions. यहाँ पे कुछ assumptions अपने को study करने. And with this assumption, we are going to study the pulley system. Now, the first assumption is that we are going to apply here to make our study very simple. ठीक है, ये assumptions हम लोग क्यों कर रहे हैं? So that हमारा जो study होगा pulley system का, it becomes very simple. अगर हम ये assume नहीं करेंगे तो system थोड़ा सा और complicate हो जाएगा. It will be very difficult for us to understand at a very basic level. So to make things very easy, we are making this assumption. So the first assumption is we assume that the pulley is massless and frictionless. It is massless and frictionless. It is massless and frictionless. So we are assuming that the mass of the pulley is negligible and the friction that is generated by this pulley is also negligible. So we are not considering the friction and the mass of the pulley when we are solving such particular questions. Second, so the string or rope, whatever we are using, is again massless and it is inextensible. Okay, so the rope or the string that we are going to use in such particular cases are massless and inextensible. So what do we mean by massless? Sir, obviously that means uska mass is equal to 0. So what do we mean by inextensible? Inextensible matlab the length of that particular rope or that particular string is going to remain constant. No matter how much force is applied on that particular rope, the length of that rope is not going to change.
बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होती है दैट वेन एवर यू स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट, द लेंथ इंक्रीजेस और लेंथ डिक्रीजेस बाय सम फैक्टर. So here we are assuming the factor by which the length of the string is going to increase or the fraction by which the length of the string is going to decrease is very minimal. So we are taking it as 0. We are assuming it is a negligible. So there is no change in the length of the string and there is no mass of the string. Now because of this fact that the string is massless and inextensible, we can make one point here. What point we can make here? So if the string is massless, okay, if the string is massless, the tension at each point, the tension at each point is same. Okay, if the string is massless, then tension at each point is same. If you have a massless string and if you find out tension at any point, you will find that tension at any point will remain same. Okay, अगर वो मास वाला स्ट्रिंग होता, मास वाला, then tension at every point would have been different. The tension at which जहां पे हम लोग उसको टाई करते हैं from the rigid support is different and the point जहां से उसको हम ऑब्जेक्ट से टाई करते हैं tension will be different. The tension will be different at the center of the string. So at every point the tension of the string will be different. अगर string हमारा कैसा है, मास वाला है. So here we are assuming that the string is massless, the rope is massless, and hence the tension at each and every point is same, is equal. So ये assumptions के साथ हम लोग अब ये पुली सिस्टम स्टडी करने वाले हैं with all these assumptions. ओके, तो एक सिंपल सा छोटा सा पुली सिस्टम को जरा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. सपोज कर लो एग्जाम्पल 1. Okay, now suppose we have a rigid support here. Students, imagine that we have a rigid support here. यहाँ पे एक rigid support अपने पास, और इस rigid support के साथ हमने यहाँ पर एक पुली को हैंग किया. So पुली here, there is a pulley here like this. There is a pulley here. यहाँ पे एक पुली लगाया हमने यहाँ पे. ठीक है, अब इस पुली के साथ हम लोग यहाँ पे एक रोप लगाते हैं या स्ट्रिंग लगाते हैं, वॉट एवर यू कैन से. ऐसा मैंने एक रोप पास किया ऐसे, इस पुली के थ्रू, इस पुली के अराउंड मैंने ऐसा एक रोप पास किया. And I'm assuming that the mass of this rope is negligible, mass of this string is negligible, massless है. और इसके साथ अभी हम लोग यहाँ पर दो मास अटैच कर रहे हैं बेटा, टू मासेस. तो सपोज वन मास मैंने यहाँ पे अटैच किया है एंड वन मास मैंने यहाँ पे अटैच किया है. ऐसा मैंने अटैच किया. सिंपल सा पुली सिस्टम है. लेट अस से इसका मास इज m1, लेट अस से इसका मास इज m2. So two masses are connected to a rope which is passing over a massless and a frictionless pulley. ठीक है, आप सपोज कर लेते हैं कि m2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन m1 का वैल्यू. Let us say m2 is greater than m1. So what will happen? So this mass is greater than this mass. तो क्या होगा फिर? So but obviously because this is heavy, so this mass will go down and this mass will move up. So I can say that in this system of pulley, two masses will accelerate. One will accelerate in downward direction, the other will accelerate in upward direction, and both acceleration will be same. So if this is A, then this is also A. Okay, समझा आपने को? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं. सर, we have a massless and a frictionless pulley system. We have a massless and a frictionless pulley system. A massless string is passed over a pulley. Two mass m1 and m2 are connected to the string. Okay, m2 is greater than m1. Because of that, the m2 accelerates in downward direction, the m1 accelerates in the upward direction, and both accelerate with the same acceleration, and that is A.
नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। हमको करना क्या है सर? हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड what is the acceleration of system? What is the acceleration of system? With what acceleration these bodies are accelerating in downward and in upward direction? Okay, समझा आपने को? ठीक है, सेकंड चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम विच शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ M1। तो वी हैव अ मास हियर M1। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैंगिंग? सो वी हैव मास M1 हियर, ये हमारा M1 है। अब इस M1 के ऊपर स्टूडेंट्स कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? लेट्स फिगर आउट कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। M1 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सर सबसे पहला ऑलवेज, लाइक ऑलवेज, एनी फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? वेट। सो वेट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहला किसी भी बॉडी पे अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, स्टार्ट विथ वेट, बिकॉज हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस M1 पे एक वेट लगेगा नीचे की तरफ एंड दैट इज M1G, दैट इज द वेट ऑफ दिस मास। अच्छा, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है सर? बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग में हो क्या रहा है, सपोज दिस इज योर स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस मास, नाउ लिसन केयरफुली गाइस, वो जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दीज मासेस, ओके, देयर इज अ टेंशन डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द मासेस दैट वी हैव अटैच्ड हियर, there is a tension developed in the string. Now since the string is massless, hence at every point the tension is remaining same. ठीक है, समझा आपने को? तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकालू बेटा, दिस पॉइंट, और अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकालू तो इस दोनों पॉइंट्स पे टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा बेटा? सेम। अब ये सेम क्यों है? उसके पीछे सिंपल रीजन ये है, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस सेम स्ट्रिंग है, सेम ही रोप सेम ही स्ट्रिंग पास हुआ है। पहला रीजन ये है, एंड दूसरा रीजन ये है कि सर जो हमारा स्ट्रिंग है, जो हमारा रोप है, दैट इज मासलेस, एंड उसी की वजह से टेंशन जो है एवरी पॉइंट पे सेम है। अब किसी भी पॉइंट पे टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्रॉस बनाने का, क्या बनाने का बेटा? क्रॉस। यस, क्रॉस बनाने का। द क्रॉस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो क्रॉस कैसे देगा समझाता हूं मैं आपको। इधर देखो, अभी थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब ये मेरा मास M1 है, ये मेरा मास M1 है, और ये मेरा स्ट्रिंग ऐसा लगा हुआ है, बराबर। ये मेरा मास M2 है और उस पे रोप पे स्ट्रिंग ऐसा लगा हुआ है। नाउ फॉर बोथ दी मासेस M1 एंड M2, M1 और M2 के लिए टेंशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा? देखो M1 और M2 के लिए टेंशन जो है ना, देखो मैंने क्रॉस बनाया, यहां पर क्रॉस बनाया है, तो क्रॉस के लिए, अरे मैंने गलती से बना दिया क्या? लेट मी रेज दिस, परफेक्ट। हाँ, तो ये मैंने क्रॉस बनाया है। अभी देखो इस मास के लिए, फॉर दिस मास द टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फॉर दिस मास द टेंशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर दिस मास ऑल्सो, इसके लिए भी टेंशन कहां पे रहेगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए भी टेंशन कहां पर रहेगा बच्चा लोग? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पे भी टेंशन कितना रहेगा बच्चा लोग? T। So for the masses the direction of tension will be in upward direction. Okay, तो सर क्रॉस क्यों बनाया? सीधा सीधा ऊपर बना देते। क्रॉस क्यों बनाया बता रहा हूं ना। अब पुली को देखो, इफ यू लुक एट द पुली, तो पुली पे स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा है बेटा, लाइक दिस, बरोबर। पुली पे स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा है, बरोबर है कि नहीं? अब ये रोप जो है, दिस रोप, इट इज पुलिंग दिस पुल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे समझा कि नहीं?
ये जो रोप में टेंशन आ रहा है बेटा, इस टेंशन की वजह से दिस पुली इज गेटिंग पुल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे टेंशन पुली के लिए टेंशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर, और एक रहेगा इधर। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पुली के लिए टेंशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा? पुली के लिए सर ये देखो इस डायरेक्शन में। इसके लिए कहां पे रहेगा सर? इस डायरेक्शन में। समझा? इसलिए मैंने क्रॉस बनाया। So for pulley, the tension is acting in downward direction, and for the masses, the tension is acting in the upward direction. समझा भाई अपने को? तो यहां पर इस मास में टेंशन कहां पे लग रहा है सर? इसके लिए M1 के लिए टेंशन कहां लग रहा है सर? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, T। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T। अच्छा सर, ये मास कहां जा रहा है सर? इट इज एक्टिंग सर, इट इज मास इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां मैं लिखूंगा अपवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन A। अब मैं लिखूंगा सर सम ऑफ ऑल फोर्स is mass into क्या रहेगा? Acceleration. So which are the two force acting on the mass? Sir, tension and mg. Sir, both are acting in opposite direction. So I will write T minus m1g is equal to m1a. This is the equation of motion for the first mass. तो पहले वाले मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये आएगा T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो T upward direction, m1g downward direction, they both are acting in opposite, therefore T minus m1g। अच्छा सेम अभी m2 के लिए करो बच्चा लोग, सेम m2 के लिए कैसा होगा? सो दिस इज योर m2, सो दिस इज योर m2, दिस इज योर m2। हाँ भाई, कहां लगेगा फोर्स? सबसे पहला देखो रोप ऊपर की तरफ, दिस इज द रोप। हाँ ये अपना m2 है। तो सबसे पहला विच फोर्स एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट? सबसे पहला फोर्स कौन सा रहेगा सर? वेट। एंड वेट कौन से डायरेक्शन में रहेगा? डाउनवर्ड m2g। नाउ फॉर दिस मास टेंशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा सर? टेंशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, द टेंशन विल बी t, एंड दिस मास इज एक्सीलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a। सर अगेन आई विल डू द सेम थिंग। क्या करेंगे सर? समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज नथिंग बट मास टाइम्स एक्सीलरेशन। सर अगेन दो फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है, टेंशन एंड वेट, बट हियर आई विल राइट m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। अब स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन में आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पे मैंने पहला t लिखा था, फिर माइनस m1g किया, और यहां मैंने क्या किया? m2g माइनस t किया। ऐसा क्यों? Why that so? How can we decide पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? वेरी गुड, सॉरी बोलो। ए का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ए विल डिसाइड कौन पहला आएगा कौन बाद में आएगा। सी स्टूडेंट्स, ये जो मास है ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस इस पे नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस मास इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्सीलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड सिंस द मास पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, therefore tension will be greater than the weight, so therefore T minus m1g। but sir in this particular case the mass is acting in downward direction, so since it is moving in downward direction the net force is acting in downward direction, so therefore कौन बड़ा हो गया? m2g, so it will be m2g minus T is equal to m2a। अच्छा कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अपने को ये बाकी है अपना द पुली बाकी है। पुली पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा? आओ फाइंड आउट करना है अपने को, पुली वाला फोर्स कितना लग रहा है? आओ पुली पे कितना फोर्स लग रहा है? तो सर दिस इज पुली, सर दिस इज पुली। हाँ सर दिस इज पुली। अब पुली पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? चलो फाइंड आउट करते हैं। सर पुली के थ्रू एक रोप पास हो रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस पुली के ऊपर दो टेंशन एक्ट हो रहा है बेटा, दो टेंशन। सो एक टेंशन यहां लग रहा है, दैट इज टी, और एक टेंशन यहां लग रहा है, दैट इज ऑल्सो टी। सो पुली पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली विल बी इक्वल टू हाउ मच? टू टी। क्या बात समझ में आया भाई अपने को यहाँ पर? इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया था।
इधर देख रहे हो क्रॉस बन रहा है यहाँ पर. सो मासेस के लिए डायरेक्शन ऑफ टेंशन कहां रहेगा? अपवर्ड. पुली के लिए डायरेक्शन ऑफ टेंशन कहां पे रहेगा? डाउनवर्ड. ऐसे. ओके, तो ये तीनों का इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया. अच्छा, मेरे को फाइंड क्या करना था? हम तो थोड़ा अलग हो गया. एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम हमको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम? तो स्टूडेंट्स, मेरे पास दो इक्वेशन था. t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a और दूसरा इक्वेशन था m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a. अब इन दोनों इक्वेशन आई एम गोइंग टू ऐड. व्हेन वी ऐड बोथ द इक्वेशन, व्हाट हैपेंस? सर, ये प्लस t and minus t will go off. I will be getting m2g minus m1g is equal to m1a plus m2a. So you take g common. So m2 minus m1 into g will be, take a common, you will get m1 plus m2 into a. So a is equal to m2 minus m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू क्या आएगा बच्चा लोग? g. ये आएगा. सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम. इसका मतलब बच्चा लोग, अगर सपोज कर लो हमारे पास एक पुली सिस्टम है. आई टेक एग्जांपल नंबर 2. सपोज अगर अपने पास एक पुली सिस्टम है. ओके, सो दिस इज अ पुली सिस्टम. So this is your pulley. Okay. And this is attached to a rigid support like this. एक rigid support है भाई यहाँ पर. ठीक है. Now there is a rope which is passed over this pulley. Okay, there is a rope which is passing over this pulley like this, and it is attached to two masses. Let us say one mass is of 5 kg. Let us say other mass is of 2 kg. Okay, so one is 5 kg, other is 2 kg. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? This system will accelerate. This will accelerate in downward direction and this will accelerate in upward direction. Both will accelerate with same acceleration. Sir, acceleration का value क्या रहेगा? Sir, we have just got the formula and with the help of this formula I can determine what is the acceleration. तो सर यहाँ पे acceleration क्या होगा? A will be m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g. तो यहां मुझे आएगा 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू जी. सो दिस विल बी 5 माइनस 2 इज 3, 5 प्लस 2 इज 7, इट इज 3 by 7 g. सो 3 g by 7 की एक्सीलरेशन से द सिस्टम इज गोइंग टू एक्सीलरेट. अब बस m2 m1 का वैल्यू पुट किया, मेरे को मेरा एक्सीलरेशन मिल गया. अच्छा, नाउ आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन. टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो. टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो. टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो. Now substitute this formula of acceleration in any one of the above equation. अब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा. द टेंशन का फॉर्मूला T विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. So this is the formula of tension. कैसे मिला मेरे को? सर, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे भी पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 में भी और यहाँ भी पुट कर सकते हो इक्वेशन 2 में भी. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इफ यू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर A, you will get the equation for tension 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g. ओके, तो यहां पे कितना टेंशन द स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. कैसे करूंगा देखो इधर. अगर इस केस के लिए मेरे को टेंशन निकालना पड़े तो कितना आएगा टेंशन? सर, टेंशन द स्ट्रिंग T विल बी 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So sir, this will be 2 into 5 into 2 upon 5 plus 2 into g. So thus this will be 5 into 4 20 upon 7 into g. This much is the tension in the string. इतना टेंशन स्ट्रिंग के अंदर रहेगा. So 20g by 7 is the tension, 3g by 7 is the acceleration.
ओके तो वापस मैं रिपीट कर, देखो पुली सिस्टम में क्या होगा, पुली सिस्टम में सर बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कभी पुली सिस्टम आएगा तो सबसे पहले अपने को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। सर व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट्स अ डायग्राम व्हिच शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके तो यहां पर M1 पे हमेशा हमेशा हर मास के ऊपर उसका वेट पहले एक्ट करेगा। तो सर ड्रॉ द वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, M1 M2 का वेट। फिर सर क्योंकि रोप है तो रोप की वजह से टेंशन क्रिएट होगा, सो टेंशन विल बी T। देन क्रिएट द इक्वेशन ऑफ मोशन, सम ऑफ ऑल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करो, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो। अब यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बड़ा कौन रहेगा? टेंशन। इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। यहां पर बड़ा कौन रहेगा? सर वेट, बिकॉज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो जहां भी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा दैट फोर्स विल बिकम बिगर। तो उसको पहले लिखो, दूसरे वाले फोर्स को बाद में लिखो, इक्वल टू M1A। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे पुली वाले क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे फ्री बॉडी डायग्राम से ही सॉल्व होंगे। तो यू शुड बी वेरी थरो विद द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके अब एक सिंपल पुली मैंने आपको सिखा दिया, अब इसके अलग अलग केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है तो जस्ट इसको नोट कर लो एंड देन विल मूव अहेड।